अब आपकी एक्सरसाइजेस दी गई हैं एडवर्ब्स। रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ एक सेंटेंस दिया है जो स्टोरी से लिया गया है। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वो जो है टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर है वो कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। द वर्ड कंप्लीट इज एन एडजेक्टिव। ये जो कंप्लीट वर्ड है ये एडजेक्टिव है। When you add ly to it, it becomes an adverb. पर यहीं पर अगर आपने ly ऐड कर दिया तो ये एक एडवर्ब बन गया। अब आपको जो है सेंटेंसेस लेसन के अंदर ढूंढने हैं जिसमें एडवर्ब्स जो हैं वो मिले आपको स्टोरी के अंदर। तो पहला है awfully। awfully में आपको मिल जाएगा and it was awfully funny। sorrowfully जो वर्ड है वो सेंटेंस में दिया है until her mother had shaken her head sorrowfully। completely, the history sector had blanked out completely। loftily, he added loftily। carefully, pronouncing the word carefully। फिर है differently, each kind has to be taught differently। quickly, Margie said quickly। और non-gallantly, maybe he said non-gallantly। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये आपके विद एडवर्ब हैं जो स्टोरी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। अब आपको इन्हीं जो एडवर्ब्स दिए हैं उनको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। तो इसका आंसर है द रिपोर्ट मस्ट बी रेड केयरफुली। At the interview, Sameer answered our questions dash, shrugging his shoulders. So at the interview, Sameer answered our questions loftily. We all behave dash when we are tired or hungry. We all behave differently. The teacher shook her head dash when Ravi lied to her. The teacher shook her head sorrowfully. I forgot about it dash. I forgot about it completely. When I complimented Revati on her success, she just smiled dash and turned away. So when I complimented Revati on her success, she just smiled non-gallantly. Non-gallantly का मतलब होता है बिना किसी इंटरेस्ट के। The president of the company is dash busy and will not be able to meet you. The answer is awfully. I finished my work dash so that I could go out to play. I finished my work quickly. Make adverbs from these adjectives। अब आपको adjectives दिए हैं उनको adverb में convert करना है। angry, angrily, happy, happily, merry, merrily, sleepy, sleepily, easy, easily, noisy, noisily, tidy, tidily, gloomy, gloomily। तो ये एक तरह से आपके adjectives converted into adverbs with the help of ly। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इफ नॉट एंड अनलेस। इमेजिन दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। इमेजिन करो कि मार्गी मदर ने उससे कहा कि तुम्हें जो है बड़ा ऑफुल लगेगा अगर तुमने अपना हिस्ट्री लेसन जो है फिनिश नहीं किया। शी कुड आल्सो से यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। वो ऐसा भी कह सकती थी कि तुम्हें बड़ा ऑफुल लगेगा जब तक तुमने अपना लेसन नहीं फिनिश किया या करोगी। Unless means if not। Unless का मतलब क्या हुआ? अगर नहीं। Sentences with unless और if not are negative conditional sentences। इस तरह के sentences को हम negative conditional sentences कहते हैं। Notice that these sentences have two parts। दो parts होते हैं इनमें। The part that begins with if not or unless tells us the condition। जिस part में हमें if not या unless बताया जाता है, शुरुआत होती है, वो हमें एक तरह से condition बताता है। This part has a verb in the present tense। Look at the verbs don't finish in the sentences above। अब ये जो पार्ट होता है इसमें present tense में verb available होता है। The other part of the sentence tells us about the possible result। पहले वाला हमें condition बता रहा है, दूसरा पार्ट जो है हमें result बता रहा है। It tells us what will happen। अगर नहीं किया तो क्या होगा, तो result जो है वो बता रहा है। The verb in this part of the sentence is in the future tense। मतलब अगर तुमने काम नहीं किया तो आगे मतलब भविष्य में एक तरह से क्या होगा उसका रिजल्ट, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब प्रेजेंट में है और जो आपका रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर टेंस में होगा कि ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, होगा ना तो वो आगे फ्यूचर में हो गया। तो इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर नोटिस दीज टू टेंसेस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आपको दो टेंसेस दिए हैं, एक है फ्यूचर टेंस और दूसरा है प्रेजेंट टेंस। There won't be any books left। कोई भी बुक्स नहीं बचेंगी
unless we preserve them. यानी कि हम अगर उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो कोई भी बुक नहीं बचेगी। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, you won't learn your lessons if you don't study regularly. तुम्हें अपने लेसन्स याद नहीं होंगे अगर तुम उनको सही तरीके से रोज रेगुलरली स्टडी नहीं करोगे। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। और टॉमी का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर वो सही और धीमे ड्राइव नहीं करेगा। तो अब आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो हम आपको इसके एग्जांपल्स के साथ साथ आंसर्स भी बता रहे हैं। इफ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, आंसर क्या होगा? शी विल गेट अनॉयड, नाराज हो जाएगी। इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, यू विल मिस योर इवनिंग मील। अगर तुमने फोन नहीं किया फूड को ऑर्डर करने के लिए होटल में, तो तुम्हारी जो इवनिंग मील है वो मिस कर दोगे। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करते, जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करते कि तुम मेरे को लिख के दिखाओगे, तब तक मैं कंटिन्यूअसली जो है तुम्हारे को रिक्वेस्ट करते रहूंगी। इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, शी विल बिकम वीक एंड अनफिट। अगर वो गेम्स नहीं खेलेगी तो क्या होगा? वो ज्यादा कमजोर रहेगी और अनफिट रहेगी। Unless that little bird flies away quickly, the cat will pounce on it. अगर वो छोटी सी चिड़िया तेजी से नहीं उड़ी तो पक्का है कि वो जो कैट है वो उस पर अटैक कर देगी, उस पर कूदी मार देगी। A new revised volume of Isaac Asimov's short story has just been released. एक नया रिवाइज्ड वॉल्यूम आइजैक एसिमोव की शॉर्ट स्टोरीज का रिलीज हुआ है। ऑर्डर वन सेट, एक आपको सेट ऑर्डर करना है। राइट ए लेटर टू द पब्लिशर माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आसिफ अली रोड, न्यू दिल्ली। ये उसका एड्रेस है। आपको इनको पब्लिशर जो है उनको लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग दैट अ सेट टू बी सेंट टू यू बाय वैल्यूएबल पेएबल पोस्ट वीपीपी से एंड गिविंग योर एड्रेस। आपको अपना एड्रेस बताना है और वहां से उनसे बोलना है कि एक हमको जो आपका नया वो निकला है उसको भेज दे ऑर्डर पे। अब लेटर में जो है आपके फॉलोइंग पार्ट्स होने चाहिए: एड्रेस, सेंडर और रिसीवर का, सैल्यूटेशन, बॉडी लेटर की और क्लोजिंग फ्रेजेस और सिग्नेचर। तो आपका जो लेटर है वो इस तरह से लिखना चाहिए: आपका एड्रेस हो, डेट हो, एड्रेसी का एड्रेस हो, डियर सर मैडम से, योर सिंसियरली और योर सिग्नेचर। Remember that the language of the formal letter is different from the colloquial style of personal letters. जिस तरह से हम पर्सनल लेटर्स लिखते हैं और जिस तरह से फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, दोनों में फर्क है, दोनों की लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सच एज आई हैव और कांट आर नॉट बी यूज्ड। आप उसमें जो है जो एक तरह से आई हैव को आई अपोस्ट्रोफी वी कर दो या कांट कैनॉट की जगह कांट कर दो, ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस लेटर को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से सेल्फ एक्टिविटी है। हम आपको सैंपल की तरह बता रहे हैं, आप इसका एक तरह से आइडिया लेने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आंसर ऐसा कर सकते हैं: 516 सेक्टर 15 पानीपत, 11 अक्टूबर 2020। मेसर्स माइंडफ्रेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आसिफ अली रोड, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या आएगा कि रिक्वेस्ट फॉर न्यू वॉल्यूम ऑफ आइजैक एसिमोव्स शॉर्ट स्टोरीज। सर, I came to know that a new revised volume of Isaac Asimov's short stories has been released. ये निकला है आपका एडिशन। I will be grateful if you send one of its volume as early as possible at my mailing address. और मैं आपके बहुत आभारी रहूंगा अगर आप मेरे को इस सेट का एक वॉल्यूम जो भी है वॉल्यूम का सेट आप मेरे को जितनी से जल्दी हो सके मेरे मेलिंग एड्रेस पे भेज दें। Yours faithfully, असा एजुकेशन। एनक्लोजर के लिए साथ में क्या लगा दिया है? डिमांड ड्राफ्ट और ₹4,2500। जिस बैंक का है वो क्या कहते हैं उसका ब्रांच का नाम, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, पेएबल एट न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से आप अपना जो लेटर है वो लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन एक तरह से है चैप्टर का, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक। अगेन इट्स अ आंसर फॉर डिस्कशन, यानी कि आप इसमें अपने थॉट्स और ओपिनियंस बता सकते हैं। द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स। टॉपिक क्या है कि जो हमारा भविष्य का स्कूल होगा उसमें ना तो कोई बुक्स होंगी ना टीचर्स होंगे। Your group can decide to speak for or against the motion. अब आपका जो ग्रुप है वो उसके फेवर में बोलना चाहे, उसके अगेंस्ट में बोलना चाहे। After this, each group will select a speaker to present its views to the entire class. उसके बाद सारे जो ग्रुप्स हैं वो अपने में से एक स्पीकर सेलेक्ट करेंगे और उसके फिर अपने जो विचार हैं उनको क्लास के सामने बताएंगे। You may find the following phrases useful to present your arguments in the debate. अब आप जो है कुछ फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिबेट में यूज करने के लिए, जैसे in my opinion, I have failed to understand why, I wholeheartedly support या oppose the view that, या फिर आप ये कर सकते हैं at the outset let me say,
और आई वुड लाइक टू रेज द इशू ऑफ या आर्ग्यू अगेंस्ट। इसी तरह से आई शुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू, या माई आवर वर्दी ओपोनेंट हैड सबमिटेड दैट, ऑन द कॉन्ट्ररी आई फर्मली रिजेक्ट। इस तरह के आप जो है फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम आपको यहाँ पर पहले फेवर में और दूसरा अगेंस्ट में, दोनों में ही कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं सैंपल के लिए। आप अपनी पसंद से इसमें जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, या इसमें जो चाहें वो अपने उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहला है फेवर की बात करें अगर, तो द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव नो बुक्स एंड नो टीचर्स बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जिस तरीके से अगर हम आज का प्रेजेंट डिस्कशन करें तो कोविड-19 चल रहा है, बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी हद तक एक तरह से डिजिटल उस पे ही पढ़ाई चल रही है एडवांसमेंट की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर्स अवेलेबल है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो अगर हो सकता है जिस तरह के 137 ईयर्स आगे की बात करें तब तक तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई होगी, तो एक तरह से पॉसिबल हो सकता है कि जो कंप्यूटर्स हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं इनकी वजह से आगे बुक्स भी ना हो और टीचर्स भी ना हो। वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन, इंटरनेट आजकल हर जगह अवेलेबल है। इनोवेटिव एंड एजुकेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जिससे जो एजुकेशन है वो और इजी मेथड से इम्पार्ट करी जा सके। पेरेंट्स एटीट्यूडनल चेंजेस, पेरेंट्स का जो नजरिया है उसमें भी बदलाव आएगा, वो किस तरह की लाइकिंग करते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, अब फिर क्या होगा, जो बहुत ज्यादा काबिल हैं, जो एक क्या कहते हैं कैपेबिलिटी रखते हैं, अनुभव हैं, वैसे टीचर्स नहीं मिलेंगे। कंसिडरेबल एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। प्यूपल्स ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, लोगों का नजरिया जो है वो काफी ब्रॉड हो जाएगा। मॉडर्न एंड लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अब जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है आगे चल के जो गैजेट्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक वो काफी ज्यादा मॉडर्न होंगे, काफी लेटेस्ट होंगे। इन्वेंशन ऑफ एजुकेशनल सीरीज एंड टीवी प्रोग्राम्स, ज्यादातर जो प्रोग्राम्स बनेंगे टीवी के या इस जो सीरीज आएंगी मार्केट में वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, बहुत अच्छी बनने लग जाएंगी। एंड एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी, अब क्योंकि सब चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी तो स्टेशनरी की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, तो उसका एक तरह से वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ये तो जो पॉइंट्स हैं ये एक तरह से अगर हम फेवर में बात करें कि आगे चल के स्कूल्स जो हैं उनके जो फ्यूचर के स्कूल्स होंगे उनमें कोई बुक्स नहीं होंगी, कोई टीचर्स नहीं होंगे। अब यहीं पर हम अपने पॉइंट्स अगेंस्ट में अगर बताएं कि जो स्कूल्स है फ्यूचर के उनमें क्या होगा, कोई बुक्स नहीं होंगी, तो नतीजा क्या होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो बिकम द स्लेव्स ऑफ मशीनरी, पूरी तरह से मशीन के गुलाम हो जाएंगे, सब कुछ डिपेंड हो जाएगा मशीनरी पे। मैकेनिकल टीचर्स विल टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ रियल टीचर्स, अब ह्यूमन बीइंग्स तो टीचर्स रहेंगे नहीं तो उनकी जगह कौन आ जाएंगे, मैकेनिकल टीचर्स। नो इंटेंशन टू टीच द स्टूडेंट्स मॉरल एथिक्स, अब मैकेनिकल टीचर क्या पढ़ाएगा, जिस चीज के लिए वो प्रोग्राम थे, तो वो ना बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाएगा, ना एथिक्स सिखाएगा, ना उसकी कोई ऐसी मंशा होगी। ह्यूमन बीइंग्स विल हैव नो सेंटिमेंट्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, तो जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे वो जिस तरह से पढ़ाई करेंगे तो उनके पास जो है एक तरह से सब्जेक्ट रिलेटेड तो नॉलेज बहुत होगी, पर उनको जो और चीजें सीखने का होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो सब उनके पास कुछ होगा ही नहीं। द स्टूडेंट्स विल बी मोर एरोगेंट एंड अनडिसिप्लिन्ड, जब आपको कंट्रोल नहीं होगा, आप अपने घर में अपनी मर्जी से कर रहे हैं सब चीजें, तो एक डिसिप्लिन की जो भावना होती है कि ग्रुप में बैठ के कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप एरोगेंट हो सकते हो, आप क्या कहते हैं गुस्सैल ज्यादा हो सकते हो। स्टूडेंट्स माइट नॉट रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, एल्डर्स एंड पीयर्स, तो हो सकता है स्टूडेंट्स आगे चल के ना पेरेंट्स की, ना एल्डर्स की, ना उनके जो साथ के और वैसे वाले लोग हैं जो उन्हीं की एज के हैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें। नो फीलिंग्स ऑफ फ्रैटर्निटी एनीमोर, कहीं फ्रैटर्निटी की फीलिंग नहीं रह जाएगी। हार्मोनियस ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड विल हैव नो सिग्निफिकेंस, एक तरह से जो बच्चे की ग्रोथ है जो एक हार्मोनी में होनी चाहिए, हार्मोनियस ग्रोथ होती है कि मतलब एक मतलब ये हुआ कि सुसंगति जो होती है ना, जिसमें एक बच्चा पल के जो है अच्छे व्यवहार सीखता है, एक अच्छा डिसिप्लिन आता है, उन सब की कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।